جب پاکستان نے نیوکلیر ایکسپلوژن کیا 1998 میں تو اس کے بعد ہم پہ اکنامک سینکشن لگ گیا، اور سینکشن لگنے کا مطلب یہ ہوا کہ باہر سے جتنے انفلوز آ رہے تھے ہمارے پاس وہ سب رک گئے، لیکن پاکستان اپنے جو ڈیٹ کی پیمنٹ تھی وہ وقت پہ ادا کرتا رہا۔ یہ ایک 10 دن میں، ایک ہفتے میں 60 روپیہ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، آپ بتائیں کہ وہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا ہے۔ وہی مہنگائی کا دورہ بڑھ کے تھوڑا ایکسیلریٹ ہو گیا ہے، کرنسی کی ڈیویلیویشن کنٹینیو کر رہی ہے جس طریقے سے ماضی میں کرتی رہی تھی، پچھلی والی حکومت کے دور میں۔ تیسرا یہ تھا کہ ٹوٹل سرنڈر ٹو دی IMF، ٹوٹل سرنڈر، کسی نے کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا ان کے ساتھ۔ آج ہم جون میں ہے نا، آپ دیکھیں گے کہ سپٹمبر تک اور پاکستان کی معیشت خراب ہوگی یا خراب کی جائے گی۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ؟ میک شیور کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہ بچے بٹ ٹو گو فار 23rd IMF۔ کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں اور جدھر ہم جا رہے ہیں، کیا آگے منظرنامہ ہے، یہ بھی میں اس پہ ڈسکس کروں گا آپ سے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان اپنی تاریخ کے ایک بہت مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے، معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی۔ ماضی میں بھی پاکستان کو اس قسم کی مشکلات کا سامنا رہا ہے، خاص کر میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میں اس میں شامل تھا اور اس کو ہینڈل بھی کیا تھا۔ جب پاکستان نے نیوکلیر ایکسپلوژن کیا 1998 میں، مئی 1998 میں، تو اس کے بعد ہم پہ اکنامک سینکشن لگ گیا، اور سینکشن لگنے کا مطلب یہ ہوا کہ باہر سے جتنے انفلوز آ رہے تھے ہمارے پاس وہ سب رک گئے، لیکن پاکستان اپنے جو ڈیٹ کی پیمنٹ تھی وہ وقت پہ ادا کرتا رہا۔ تو انفلوز رک گئے تھے، آؤٹ فلوز ہو رہے تھے، تو نیچرلی ہمارا ریزرو جو ہے وہ گرتے 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 $400 بلین کے قریب آ گیا تھا۔ نومبر دسمبر 1998 کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس وقت بھی ہمیں بہت معاشی مشکلات سے گزر رہے تھے۔ تو ہم نے ماضی میں بھی اس قسم کے چیلنج دیکھے ہیں، لیکن فرق اس چیلنج میں اور ماضی کے جو چیلنج تھے جس کا میں نے ذکر کیا، اس میں دو بڑے کافی اس میں دو میں فرق رہا ہے۔ ایک فرق تو یہ تھا کہ اس وقت سیاسی عدم استحکام نہیں تھا ملک میں جب معاشی مشکلات ہم پہ پڑی تھی۔ اس وقت جو ہے جتنی ڈیپ ہماری اکنامک چیلنجز ہو گئے ہیں، اتنے ہی ڈیپ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے۔ سو اکنامک چیلنجز از ناؤ کپلڈ وتھ پولیٹیکل چیلنجز، جو ماضی میں ہم نے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، اکنامک چیلنجز تھی، اس کو ہم ایڈریس کر رہے تھے، ایک حکومت تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پچھلے جو چیلنجز تھے اس وقت جو حکومت تھی وہ اس کو اون کر رہی تھی اس چیلنج کو۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ کوئی اس کی اونرشپ نہیں ہے اس معاشی چیلنجز کی۔ ہر شخص جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے، اور خاص کر میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ اتنی سارے پارٹی اس بل کے حکومت بنائی ہے، لیکن نظر ایک ہی لوگ آ رہے ہیں، اور وہ بھی بڑے ڈرے ڈرے سہمے سہمے سے ہیں۔ تو اونرشپ لینے کو کوئی تیار نہیں ہے اس چیلنج کا، شاید وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ آگے حکومت میں تو ان کے حصے میں یہ چیلنج بھی آ گیا، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذہنی طور پہ بھی تیار نہیں تھے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے ایسے اکنامک چیلنجز دیکھے ہیں جس طریقے سے آج تھوڑا زیادہ ایگریویٹ اس لیے ہو گیا ہے کہ اس معاشی چیلنج کے ساتھ پولیٹیکل انسرٹنٹی بھی بہت ایکسٹریم نیچر کی ہے،
पोलराइजेशन है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी पोलराइजेशन नहीं देखी थी। लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए हैं। सियासत लोग करते हैं, लेकिन जान के दुश्मन नहीं होते हैं, इतने ब्रूटल नहीं होते हैं, इस सियासी दुश्मनी को इतने ब्रूटलाइज नहीं करते हैं जितना हम वक्त के साथ साथ हमने देखा कि ये हो गया है। इसलिए ये बड़ा डेंजरस सी चीज़ हमारे मुल्क में डेवलप हो गई है कि लोग एक दूसरे को जान को लेने के भी तैयार हैं कि किस तरीके से अपने दुश्मन को हटाया जाए रास्ते से। तो ये बड़ी डेंजरस सी चीज़ है जिससे हमें बचना चाहिए। सियासत को सियासत ही समझ के करना चाहिए, इसमें दुश्मनियाँ नहीं लाना चाहिए, इससे आगे चलकर मुल्क को बहुत नुकसान होता है। तो ऐसे हालात में अगर साथ में माशी चैलेंज भी हो और उसकी ओनरशिप भी न हो तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में मुल्क को हम आके खड़ा कर दिया है। देखिए, अक्सर मैं देखता हूँ टेलीविज़न पे लोग कहते हैं कि बहुत हालात ख़राब थे ये और बहुत माशी हालात ख़राब, मैंने भी अभी कहा। लेकिन अगर मैं फरवरी मार्च 2022 तक का देखूं, क्योंकि जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया पार्लियामेंट में, उस वक्त से माशी मुश्किलात में हमारा इजाफा होता चला गया। तो अगर फरवरी मार्च तक पे हम देखें तो हमारी जो इस साल जो माली साल ख़त्म हो रहा है, हमारी जीडीपी ग्रोथ 6% से ग्रो की है, 6%। लास्ट ईयर 5.7%, 2 साल का एवरेज ले लें ऑलमोस्ट 5.8 5.9% है, यानी 6% के करीब है, which is one of the very strong economies exhibit a strong growth in developing countries at least, and developed countries के मुकाबले में ये काफ़ी strong growth है। इसी तरीके से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारी, जिसको हम बड़ी सनती पैदावार कहते हैं, उसमें कुछ 10.5% का इजाफा हुआ है, यानी कि हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बड़ी तेजी से चल पड़ी थी और चल रही थी। इसी तरीके से हमारा जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट्स है, टेक्सटाइल सेक्टर ने बहुत ज़बरदस्त पिछले 3 सालों में, ये खुद उनके एप्टोपा के चेयरमैन ने मेरे साथ एक टेलीविज़न के प्रोग्राम में थे जिसमें उन्होंने कहा कि जी 70 साल में हमें इतनी बेनिफिट नहीं हुई है टेक्सटाइल के सेक्टर में जितना ये 3 सालों में हुए, पिछले 3 सालों में। और इस साल उनकी तवक्को ये है कि टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट्स एलोन जो है वो $20 बिलियन पे पहुंचेगा। और उनका ये था व्यू कि अगर इस पॉलिसी को छेड़ा नहीं गया तो हम अगले साल 26 बिलियन तक जो है हम अपने एक्सपोर्ट्स को टेक्सटाइल के लेकर जाएंगे। तो ये एक अपबीट मोमेंटम था हमारे जो लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज है टेक्सटाइल, उसके हवाले से। इसी तरीके से एक्सपोर्ट्स को देख लें कि 30-31 बिलियन डॉलर के हमारे एक्सपोर्ट्स होगा इस साल, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। इसी तरीके से रेमिटेंस भी तकरीबन 31-32 बिलियन डॉलर हो सकता है, पहुंच जाएगा 30 जून तक, और जो कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स भी रहा है। तो ये बेहतरीन जो चीज़ रही है जिसका जिक्र जो है हमारे एक्टिंग गवर्नर ने भी इस बात की निशानदेही की कि पैंडेमिक के बाद पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमीज की तरह इमर्ज होकर आया और उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। तो ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये एक्टिंग गवर्नर साहब के भी अल्फाज हैं। इसी तरीके से आपने देखा कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उससे बहुत बेनिफिट हुआ लोगों को, क्योंकि जब कीमतें बढ़ रही थी आलमी मंडी में तमाम चीज़ों की, हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर था और साथ साथ कोविड की वजह से भी जिस तरीके से लोगों का हाथ थामा गया, खासकर गरीब लोगों का, दुनिया ने उसकी अप्रिसिएशन की है। फिर इसी तरीके से एक सेहत कार्ड इस्तेमाल किया गया, ये एक तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस है और इससे आम गरीब आदमी जो है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए कि 10 लाख रुपए तक का उसका हॉस्पिटल का बिल जो है वो हुकूमत अपनी जेब से उसको पे करेगी। और ये इकदाम शुरू हो चुके थे, हेल्थ कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुकी थी। इसी तरीके से एहसास स्कॉलरशिप है, हम इसको एहसास नहीं करते। मैं एक तालीमी जगह पे बैठा हुआ हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल हूँ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का मैं प्रिंसिपल हूँ,
اور میں یہ روز دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اتنے اچھے اچھے بچے آتے ہیں بیک گراؤنڈ، لیکن ان کا بڑا بیک گراؤنڈ بڑا اتنا زیادہ مالی حالات ان کے اچھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ نصب میں داخلہ میرٹ پہ ہوتا ہے وہ میرٹ پہ آ جاتے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے یہ تعلیم مکمل کر لیں، کیونکہ کسی خاندان میں ایک بچہ بھی، ایک غریب کا بچہ یونیورسٹی نسق جیسی یونیورسٹی سے اگر تعلیم حاصل کر لے تو وہ اس کی نسلیں آنے والی بدل جائیں گی۔ تو آپ یقین کریں کہ احساس اسکالرشپ جو ہے لانچ کیا گیا اسے پچھلی حکومت نے، اور میں جانتا ہوں کہ کتنے ہمارے اپنے بچے کتنے اس کے بینیفیشریز ہیں۔ ایک خاندان بھی اگر غریب کا پڑھ لیتا ہے نسٹ ایسی یونیورسٹی سے تو آپ سوچیں کہ اس کے آنے والے مستقبل بدل جاتے ہیں۔ تو آپ ایک انسان، ایک بچے کو نہیں پڑھا رہے ہیں، کئی آنے والی نسلوں کو آپ پڑھا رہے ہیں، اس کی نسل بدل جائے گی اگر وہ پڑھ لے۔ یہ ایسی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ کام کتنا مشکل کام تھا، لیکن یہ کام شروع کیا گیا اور اس میں ہزاروں ہزار بچے جو ہیں پورے پاکستان میں یہ اس سے بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سوشل پروٹیکشن کے حوالے سے پچھلی حکومت میں اچھا کام کیا ہے۔ اگر اچھا کام کوئی کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں میرا کوئی سیاست سے کسی کا تعلق نہیں ہے، میں تمام اپنے سیاسی جماعتوں کے رسپیکٹ کرتا ہوں، اپنے ملک کے سیاسی قائدین ہیں ان کو بہت ان کا احترام ہے میرے دل میں، اور اس لیے میں کبھی کوئی اس قسم کی پولیٹیکل باتیں نہیں کرتا ہوں، لیکن جو فیکٹ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس وہ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ جہاں یہ ساری بہتری تھی وہاں چیلنجز بھی تھے۔ پچھلی حکومت کے دور میں جو سب سے بڑا دو چیلنج میرے نزدیک بہت زیادہ رہا، ایک تو قیمتوں پرائس جو ہے اور یہ انفلیشنری پریشر وہ بڑا پرسسٹ کرتا رہا، اور انفلیشن جو ہے وہ پورے 3 سال جو پچھلی حکومت نے گزارا ہے اس میں مہنگائی رہی، بالکل رہی ہے، اور خاص کر فوڈ کی جو پرائسز ہے وہ بھی کافی ایلیویٹڈ لیول پہ تھی، اور اس سے جو غریب طبقہ ہے ایون متوسط طبقہ اس کو وہ بہت انڈر پریشر تھا۔ اور دوسرے جو اس زمانے کو پچھلی حکومت نے کوئی اس میں خاص اقدامات نہیں کیے وہ تھا کہ جس طریقے سے ہمارا امپورٹ تیزی سے بڑھ رہا ہے، ڈالر کی لیکیجز ہو رہی تھی، اس کو برج کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے۔ میں چیختا رہا 3.5 سال تک کہ جی اگریسو اینڈ یٹ سلیکٹو امپورٹ کمپریشن پالیسی اس کو اڈاپٹ کیا جائے، لیکن کوئی توجہ کسی نے نہیں دی، کوئی خاطر خواہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہم ڈالر کما رہے ہیں ایکسپورٹ کی شکل میں، امپورٹ کی شکل میں، تو لیکیجز بھی اسی بڑے پیمانے پہ ڈالر کی ہوتی رہی ہے امپورٹ کی شکل میں۔ تو اس کی وجہ سے ہمارا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے، بیرونی اکاؤنٹ جسے کہتے ہیں، وہ کافی پریشر میں پہلے بھی تھا، آج اس پریشر میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو یہ پچھلی حکومت کے جو آپ سمجھیں کہ ناکامی کہہ رہے ہیں، کمزوری کہیں، یہ رہی ہے۔ اور یہ جو انفلیشنری پریشر بلڈ اپ رہا ہے، کچھ اس میں حکومت بھی ذمہ دار ہے، اور کچھ عالمی منڈی میں چونکہ قیمتیں تمام چیزوں کی خود بڑھ رہی تھی، کووڈ کے بعد سپلائی ڈسرپشن ہوئی، سپلائی باٹل نیکس کریٹ ہوا عالمی منڈی میں، اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کچھ ٹرانسپورٹ کے چارجز بڑھ گئے، انشورنس فریٹ کے چارجز بڑھ گئے، جس کی وجہ سے کموڈٹی کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھ گئی۔ لیکن حکومت کی بھی کمزوری تھی، اور وہ کمزوری تھی جس کو میں رضا باکر ایفیکٹ کہتا ہوں۔ کیا کہتا ہوں؟ رضا باکر ایفیکٹ۔ اس کا مطلب ہے ڈیویلویشن۔ پاگلوں کی طرح ہم نے کرنسی کو ڈیویلو کیا، آج پاکستانی قوم اس کی سزا اس کو مل رہی ہے۔ کہاں 121 روپے پہ پر ڈالر پہ لے کر آئے تھے، 176 177 78 پہ چھوڑ کر گئے فروری مارچ کے مہینے میں۔ اس نے بہت نقصان پہنچایا پاکستان کو اور کی معیشت کو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ رضا باکر صاحب نے اس ملک کی اکانومی کی جڑیں ہلا دی ہے۔ رضا باکر اور ہمارا حفیظ شیخ صاحب جو آئے تھے، انہوں نے پاکستان کی معیشت کی جڑوں کو ہلا دیا، اور دونوں ہلا کے چلے گئے، اور یہ قوم
22 करोड़ अवाम उसे भुगत रही है। अब ये जब हुकूमत आई तो इनको भी यही दो चैलेंज मिले। पहले एक तो महंगाई का चैलेंज मिला, बिल्कुल, क्योंकि आलमी मंडी में था वो है, वो चीज़ें चल रही हैं, तो वो उसकी वजह से वो परसिस्ट करती रही महंगाई, खास करके फूड इन्फ्लेशन, ये और उसमें इजाफा हो गया उसकी वजह से। उसके बाद इम्पोर्ट इस दौर में भी पिछले ढाई तीन 2 महीने तकरीबन होने वाले हैं, इन्होंने भी कोई खातिर खा उसमें इनको भी बताता रहा, चीखता रहा कि भाई कुछ इंपोर्ट को कर्ब करो, नॉन एसेंशियल इंपोर्ट को। एक हाफ हार्टेड सा अटेम्प्ट किया, कहीं से कोई लिस्ट पकड़ लिया जिसमें से $500,000 की आइटम जो है, जो इंपोर्ट हो रहे हो महीने का, उसको हम पाबंदी लगा रहे हैं। उस $500,000 से क्या बचेगा? हम जहाँ $70 मिलियन की इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ $500,000 महीने के इंपोर्ट अगर हम रोक दें तो उससे क्या 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 फर्क पड़ जाएगा? तो मेरे नजदीक है कि कोई सीरियस काम नहीं किया गया था। तो वो ये चैलेंज इस हुकूमत के साथ में भी है कि राइजिंग इंपोर्ट्स, अभी तक कोई खातिर खा मेरे नजदीक जो है इन्होंने इकदाम नहीं किए हैं। ये बजट आने वाला है, मेरी उम्मीद है और मैं कुछ सजेशन दूंगा कि इस बजट में भी आप इकदाम कर सकते हैं, अभी भी आपके पास वक्त है। और उसके बाद क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो चैलेंज इन्होंने इनहेरिट किया, इसकी कोई ओनरशिप नहीं की। आप देखें कि अभी तक तकरीबन 45-50 डेज के करीब 50 दिन तो हो गए हैं, तो 50 दिन में कोई ऐसा क्रेडिबल किस्म का मेजर नहीं लिया गया कि जिसकी वजह से हमारे जो रुपये पे प्रेशर है उसको रोका जा सके। वो 176 था, होते होते वो आज 200 को क्रॉस कर गया है। तो इस तकरीबन 52 दिन में अगर आप 22-23 रुपया करेंसी अगर लूज कर दें तो इसके इम्पैक्ट तो आवाम पे पड़ेंगे, महंगाई की शक्ल में और तेल की कीमतों की शक्ल में ये पड़ेगा महंगा, ये प्रेशर होगा। अभी तो तेल की कीमतें बढ़ी है, जैसे मैंने एक कहा था कि अभी तो कोविड के जो वैक्सीन लगे हैं 2 डोजेस लगे हैं, अभी 2 बूस्टर भी लगने हैं। तो आप उसके लिए पाकिस्तानी कौम तैयार हो जाए, ये लगेगा। और इसमें जो है ये हुकूमत की भी कमजोरी थी कि उन्होंने अपने उसको जो है वो क्या कहते हैं कि कोई ऐसा खातिर का इकदाम नहीं किए कि जिससे रुपये पे प्रेशर जो है वो कम हो, करेंसी के डिवैल्यूएशन को रोकने में ये कामयाब नहीं हो सके और ये होगा भी नहीं। मैं आपको बता दूं, इस किस्म के सियासी माहौल में जिस तरीके की आप पॉलिसी लेंगे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इस माहौल को बेहतर करने की जरूरत है, माहौल में तब्दीली करने की जरूरत है। ये जो सियासी माहौल मंजरनामा मैंने आपसे कहा है कि इतनी ज्यादा पोलराइजेशन हो गई है, दुश्मनी के हद तक हो गई है, इस तरह के माहौल में कभी भी इकोनॉमी फ्लरिश नहीं करती है। कभी इकोनॉमिक पॉलिसी बनेगी तो इम्प्लीमेंटेशन और उसकी फिर एग्जीक्यूशन और उसका जो डिजायर रिजल्ट है वो नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं बार बार अपील करता हूँ लोगों से, जिसके पास भी ताकत है, पावर है, कि खुदा के वास्ते सियासी अदम इस्तेहकाम को दूर करे। और उसका एक ही रास्ता है जो आखिर में मैं बताऊंगा आपसे जब मैं अपना इसको मैं मुकम्मल करूंगा। तो दूसरी चीज ये है कि ये जो टीम आई है इकोनॉमिक्स की, इस हुकूमत की बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। मुझे कहते हुए दुख होता है, मैं अपने ही मुल्क के इकोनॉमिक टीम के बारे में कह रहा हूँ, बहुत दुख होता है कि इन टोटल सरेंडर था IMF के पास जाकर, वन साइडेड जो उन्होंने कहा है, हमने आमन सदक ना किया और सर झुकाया और हम वापस आ गए। किसी ने बात नहीं की उनसे कि यार देखो क्या कर रहे हैं। ये एक 10-10 दिन में, एक हफ्ते में 60 रुपया अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, आप बताएं कि वो मुल्क आगे बढ़ सकता है? कभी भी नहीं बढ़ सकता है। अगर कोई बहस में पढ़ना चाहे वो और बात है, कोई सियासत करना चाहे वो और बात है। मैं सियासी आदमी नहीं हूं इसलिए सियासत नहीं करता हूं, लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में बताना चाहता हूं कि इस तरह की पॉलिसीज से आप शॉक दे सकते हैं। इतनी मैसिव शॉक इकोनॉमी को दी है कि हिल गया है इकोनॉमी आपका।
जहां पर ये शॉक थेरेपी हो वहां पर मैशत पनप नहीं सकती है, पनप नहीं सकती है। इससे कोई फायदा नहीं होगा इस किस्म के शॉक देने से। तो क्या कमजोरी रही इस हुकूमत की अब तक की 50-52 दिन में, कि वही महंगाई का दौर दौरा बल्कि थोड़ा एक्सेलरेट हो गया है, करेंसी की डिवैल्यूएशन कंटिन्यू कर रही है जिस तरीके से माजी में करती रही थी, पिछली वाली हुकूमत के दौर में। तीसरा ये था कि टोटल सरेंडर टू द IMF, टोटल सरेंडर, किसी ने कोई बहस मुबासा नहीं किया उनके साथ, जो उन्होंने कहा हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और तीसरी थी कि ये इंपोर्ट्स को कर्ब करने में अभी भी ये नाकाम रहे हैं। तो ये 4 इनकी कमजोरी है जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमने माजी में भी इस किस्म के चैलेंजेस देखे हैं, लेकिन ये चैलेंजेस जो है ये सियासी चैलेंज के साथ में आ गया है और इसकी ओनरशिप भी नहीं है। जो भी हुकूमत वक्त है वो उस ओनरशिप से कि ये मैंने मईशत को ठीक करना है, ये मेरा मुल्क है, इसको ठीक करना है, हमने इस जज्बे से हम वो काम नहीं कर रहे हैं जैसा करना चाहिए। सेन एलिमेंट को जब देखता हूं तो वहां पर एक क्रेडिबिलिटी का भी गैप नजर आता है कि कौन जाए, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एक दूसरे पे लोगों का एतबार खत्म हो गया है। आप देखें कि इकोनॉमिक डिटीरियोरेशन हो रही है, पॉलिटिकल एक्सट्रीम नेचर ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, एब्सेंस ऑफ सेन वॉइस है, और ट्रस्ट डेफिसिट भी है। ट्रस्ट डेफिसिट भी एक्सट्रीम नेचर का हो गया है। इन तमाम में किसी ने तो आगे बढ़ के इन चीजों को इकट्ठा करना है, उसको ठीक करना है। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि कोई शख्स ऐसा आए जो हमारे सियासी जो लीडर हजरात है इनको इकट्ठा करे, इस मुल्क के खातिर इकट्ठा करे। सियासत करें आप, लेकिन मुल्क को नुकसान ना पहुंचे। इसलिए अब इतना ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है कि कौन ये काम करेगा, किस पे लोगों का ट्रस्ट है। तो ये सोचना चाहिए कि इस तरह के जो नेचर ऑफ जो प्रॉब्लम हमारे हो गए हैं कि इकोनॉमिक में हमारी इकोनॉमी पे एक बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है, इकोनॉमी हमारी खराब होती जा रही है, डिटीरिएट हो रही है, सियासत में पोलराइजेशन एक्सट्रीम नेचर की हो गई है, लोग एक दूसरे के जान के प्यासे हो चुके हैं, खून के प्यासे हुए हैं, एक दूसरे को मारने मरने पे तैयार हो चुके हैं, ब्रूटलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गई है हमारे यहाँ पर, एब्सेंस ऑफ सेन वॉइस भी है, और साथ साथ ट्रस्ट डेफिसिट भी है, कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। तो इस तरीके से कैसे मुल्क चलेगा? मैं पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ कि सोचे इस तरफ से कि क्या इस तरह के से मुल्क हम लेकर आगे जा सकते हैं इस वक्त में जहां पे इतनी ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट हो। देखें, अब मैं सोल्यूशन की तरफ आता हूँ। जिस तरीके की आप पॉलिसी इस वक्त बना ले, दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन दिमाग को पाकिस्तान बुला ले और कहें कि जी पाकिस्तान को इस माशी गर्द आपसे आप निकाले, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मेरी बात पे तवज्जो दे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे वो, क्योंकि माशी पॉलिसी भी किसी एनवायरनमेंट में इंप्लीमेंट होती है। जब एनवायरनमेंट इतनी खराब हो जाए तो पॉलिसी का डिजायर्ड रिजल्ट या बेहतरीन रिजल्ट कहां से आएगा? उस माहौल से। तो इस माहौल को तब्दील करना है और उसके लिए, और एक चीज और मैं आपको बता दूं जो मैं बताना भूल गया उसमें, कि मैं सोल्यूशन से पहले आपको बताना चाहता हूं कि सितंबर तक चीजें आपकी और भी खराब होंगी। आज हम जून में है ना, आप देखेंगे कि सितंबर तक और पाकिस्तान की मईशत खराब होगी या खराब की जाएगी। क्यों मैं कह रहा हूं ये? मेक श्योर कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ना बचे but to go for 23rd IMF program. But to go for 23rd IMF program is starting from September 2022 until August 2025 at least. तैयार है आप उसके लिए? क्योंकि आप देखें हमारे जो जिस तरीके से पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन और साथ साथ इकोनॉमिक डिटीरियोरेशन साथ साथ जो चल रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की साइड की मैं बात कर रहा हूं, तो हमारा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है
वो कहीं से कहीं पहुंच गया है। साथ साथ मूडीज ने हमारे जो आउटलुक है उसको नेगेटिव कर दिया है। इसका मतलब यह है कि वर्चुअली वी आर आउट फ्रॉम द इंटरनेशनल डेट कैपिटल मार्केट। हम बॉन्ड फ्लोट करके पैसे इकट्ठा अब नहीं कर सकते, हम बॉन्ड नहीं फ्लोट कर सकते इंटरनेशनल मार्केट पे टू रेज मनी। शायद हमारा जो इन्वेस्टर है जो पाकिस्तान पे के बॉन्ड पे इन्वेस्ट करेगा वो ट्रस्ट नहीं करेगा पाकिस्तान पे और वो पैसे नहीं देगा। तो हम इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से बाहर कर दिए गए हैं। अब सिवाय एक ऑप्शन के है वो IMF। तो इसलिए आप देखेंगे कि सितंबर तक और चीजें खराब होंगी। मैं कोई नेगेटिविज्म नहीं फैला रहा हूं, मैं आपको अपनी आंख से पाकिस्तान की मैशत किधर जा रही है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। पाकिस्तान में लोग मेरी बातों पे तवज्जो नहीं देते, फिर बाद में भुगतते रहते हैं जैसे आज भुगत रहे हैं। इसलिए मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं आपको कि खराब होगी, और किस लिए खराब होगी ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि हमें IMF प्रोग्राम में जाना है अगले 3 साल के लिए। और जिस तरीके से अभी ये तीसरा 3 साल गुजरा है, जिस तरीके से मार पड़ती रही है IMF से, ऐसे ही पड़ती रहेगी। ठीक है, ये 1988 से ये सिलसिला शुरू है, बारिंग 4 years ऑफ प्रेसिडेंट मुशर्रफ, जो 2004 से 2008 तक हम IMF में नहीं थे। बस 34 साल में 30 साल हम IMF में हैं और अगले 3 साल की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चीजों को मजीद खराब किया जाएगा ताकि आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे बट टू गो टू द IMF। तो ये होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक ही सोल्यूशन इसका है, ये मुल्क की खातिर मैं कह रहा हूं। मेरा कोई से बार बार मैं कहता हूं मेरा सियासत से कोई ताल्लुक, जितना जल्द हो खुदा के वास्ते इस पाकिस्तान की खातिर मैं अपील करता हूं, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जितना जल्द हो सके करा दें। इस मुल्क की खातिर कराएं, इस मुल्क की मैशत की खातिर कराएं, मेरी खातिर ना करें। इस पाकिस्तान की अवाम की खातिर करें, इस मुल्क की खातिर करें। इस तरीके से मुल्क नहीं चल सकता, मुल्क नहीं चल सकता है। मैं अपील करता हूं उन तमाम लोगों से जिसके पास ये ताकत है, जो कुछ कर सकते हैं। मैं सिर्फ बता सकता हूं कि खुदा के वास्ते जितनी जल्द आप इलेक्शन के सिर्फ एक अनाउंसमेंट करेंगे ना कि फला तारीख को अनाउंसमेंट होगी कि ये इलेक्शन जो है ये पार्लियामेंट फला दिन डिसॉल्व होगी और केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी और फला तारीख को इलेक्शन होगा। आप देखेंगे कि माहौल ऐसा बदल जाएगा और आप इकोनॉमिक फ्रंट पर भी देखेंगे कि चीजें बिल्कुल, क्योंकि अनसर्टेनिटी के बादल खत्म हो जाएंगे। लोगों को ये पता हो जाएगा कि अब इलेक्शन होने वाला है, होगा, ये फला डेट इसकी अनाउंसमेंट हो गई है। माहौल में तब्दीली आ जाएगी और फिर अब जो भी आए केयर टेकर गवर्नमेंट वो पॉलिसी ले, अच्छी तरीके से पॉलिसीज ले। उसका सिर्फ काम इलेक्शन कराना नहीं है, क्योंकि एक एक दिन जाया किए बगैर हम इसकी मैशत को इसके जो चैलेंजेस हैं इसको हमें एड्रेस करना है। तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि माहौल ठीक हो चुका होगा, जो आप पॉलिसी लेंगे उसके बेहतरीन नतीजे आएंगे और वो खुल के ले सकते हैं, उनके हाथ बंधे हुए नहीं होंगे। अगर डिफिकल्ट मेजर्स भी लेने होंगे तो वो केयर टेकर गवर्नमेंट लेगी, क्योंकि वो उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो ये मैं अपने मुल्क की खातिर, इस 22 करोड़ अवाम की खातिर, इस मुल्क की मैशत की खातिर मैं उन तमाम लोगों से अपील करूंगा कि खुदा के वास्ते बहुत देर कर दी है, अब तक की अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए थी। ये बात मैंने बहुत पहले अपने इसी तरह के एक प्रोग्राम में कहा था मैंने कि दिस इज द ओनली सोल्यूशन। आप इसको दाएं बाएं करते रहेंगे, वक्त गुजरता जाएगा, जितना वक्त गुजरेगा उतना ही चीजें खराब हो, उतना ही माहौल आपका खराब होता चला जाएगा। तो इसको, इस स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी को खत्म करें और इलेक्शन के अनाउंसमेंट करें। और एक और चीज है, इलेक्शन शुड बी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। माजी में भी हमने देखा कि थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाया करते थे,
थोड़ी सी प्रोटेस्ट हुई, किसी ने इलेक्शन कमीशन में जाके अपील दायर कर दिया और ये हो जाता था। माहौल बहुत ही बिगड़ चुका है हमारा, इसलिए गुंजाइश नहीं है हैंकी पैंकी करने की। तो लिहाजा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, खुदा के लिए इस मुल्क की खातिर मैं आपसे अपील करता हूं कि इसकी अनाउंसमेंट करें और इस इलेक्शन को होल्ड करें। यही हमारा वाहिद सोल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच।